This is your review exercise 11. Number 3. This is on my page number 292. We will try to solve our complete exercise, but it's very difficult because all the questions are involving angles. I'll try to complete that. This is your review exercise 11. We are going to start our question number 3A part. The statement of question number 3 is AB is parallel to DC. Find the value or values of the unknown in each of the following figures. You are given with the 3 parts in question number 30. Question number 3. The first part is this. This is the first part. So I'm going to draw this first part on my notebook. We are given that AB is parallel to CD. This is D. This is C. Also, there is an equilateral triangle you all can see because all these 3 sides are equal. So this is an equilateral triangle. There is only one angle given to you, which is A. Now you have to find the value of A. This 1, 2, 3, and 4. There are 4 sides equal in this figure. Only AB and CD are parallel and only one unknown and one angle, which is A, is given to you. As you know that ADC आपके पास क्या है? एक equilateral triangle है. ADC आपके पास क्या है? एक equilateral triangle है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास क्या है? कैसी ट्रायंगल होती है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं. बिफोर स्टार्टिंग माय चैप्टर नंबर 10 आई हैव टोल्ड यू, और चैप्टर नंबर 11 के स्टार्ट से भी पहले मैंने आपको बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स आपके पास कितने डिग्रीज के होते हैं? 60 डिग्रीज के होते हैं. ताकि आप इन तीनों को ऐड करें और आपके पास आंसर सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल 180 आपके पास अपने आप बन जाए. सो ऑल दीज 3 एंगल इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60. As you know that DC is parallel to AB. DC और AB आपस में क्या है? पैरेलल भी हैं, इस पॉइंट को भी हम अपने जो है काम में यूज कर सकते हैं. जी 60 और 60 और ये एंगल हमारे पास क्या हो गया? 8 डिग्री. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था. अब पॉइंट ये है कि इफ यू गो टू योर दिस ABC, ये ABC आपके पास क्या है? इसकी दो साइड दोबारा से आपके पास एक ट्रायंगल है whose two sides are equal. ये ट्रायंगल ऐसा जिसकी दो साइड्स आपके पास बराबर है. इसका मतलब है कि थर्ड साइड के एजेस पर बनने वाले दोनों एंगल आपके पास क्या होंगे? इक्वल होंगे. इफ दिस एंगल इज A, अदर एंगल विल आल्सो बी A. और ये एंगल आई एम गोइंग टू नेम दिस एंगल एज X. आई वांट टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ X फर्स्ट. सो दोबारा से सुन ले हमने अभी तक क्या किया. बिकॉज ACD वाज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसका मतलब है कि तीनों एंगल्स इसके क्या होंगे? 60 60 60. एंड ABC was a triangle whose two sides are equal, which is known as isosceles triangle. दो साइड्स इक्वल हो जाने के बाद जो थर्ड साइड आपके पास बचती है उसके एजेस पर बनने वाले दोनों एंगल इक्वल होते हैं. If this angle is A, other one will also be A, and I have named this angle to be X. मैंने इस एंगल को X नाम दिया, थर्ड एंगल को X नाम दिया. सो सोल्यूशन में स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम द ट्राइंगल ABC. तीनों एंगल्स आपके पास आ गए. सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180. A और A आपके पास कितने हो जाएंगे? 2A is equal to 180. Find out the value of X because 2A is being added on left side of equation. So when you will take this on the right side, it will be subtracted. So 180 minus 2A. So the value of X is 180 minus 2A. As you know that AB and DC are parallel. इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. 60 और X आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल. यहाँ पे आप लिखेंगे X is equal to 60 because reason आपने लाजमी लिखना है that AB is parallel to DC. 60 और X आपके पास क्या हो जाएंगे? इक्वल. But the value of X was 180 minus 2A, which will be equal to 2A is being subtracted on left side of equation. So 180 is equal to 60 plus 2A. 180 minus 60 is equal to 2A. 180 minus 60 is 120 is equal to 2A because there is no mathematical operation between 2 and A, which means they both are being multiplied. So when you will take this 2 on the left side of equation, it will be divided. 6 2s are 12.
0 इज इक्वल टू a, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाती है 20. सो द वैल्यू ऑफ a is 20. This is your review exercise 11, question number 3, a part. जी बेटे. टीचर ये 6 कहाँ से आया है? प्लस 2, ये आपके पास 2 है. जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 60. ये 2 है. दोबारा से देख लें हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट कैसे किया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 60 किए. आइसोसेलेस के दोनों एंगल इक्वल किए, थर्ड एंगल को x नाम दिया. थर्ड एंगल की वैल्यू है 180 - 2 है, बिकॉज ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, तो x और 60 आपस में इक्वल हो जाएंगे. 180 - 2 है, 60 वहां से इक्वल हो जाएंगे. वहां से आपने a की वैल्यू निकाल ली 60, क्योंकि एक ही अननोन था तो यहाँ पे आपका सवाल जो है वो खत्म हो जाता है. I'll give you a few seconds to take the screenshot. Page number 292. Okay, now your B part. B part देखिए आपके पास ये लिखा हुआ है B part. दोबारा से AB is parallel to DC. There are 3 unknown B, D and C. So this is your B part. AB is parallel to DC. This angle is 76, 118 और यहाँ पर आपके पास बनी हुई है एक ट्रायंगल B, B, C एंड C और थर्ड अननोन आपके पास क्या है D. आपने 3 अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन से देखें, क्योंकि ए बी और सी. यस हसनैन अली बेटे, आपका ना माइक ऑन है. अली हसन, अपने माइक ऑफ कर लें प्लीज. जी, ए बी और सी डी आपके पास पैरेलल है. इसका मतलब है कि ये दो जो एंगल्स हैं आपके पास, ये पूरा 76 एंड दिस कंप्लीट एंगल, ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपके पास क्या है, पैरेलल हैं. तो 76 और ये पूरा एंगल आपके पास ये बी है और ये भी है, टोटल एंगल विल बी 2b. इंटीरियर एंगल्स एड अप टू मेक 180 डिग्री. और यहाँ पे आपने लिखना है कि इंटीरियर एंगल्स, और रीजन आपने क्या देना है, दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ये हमें गिवन था. ए बी पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब हम इंटीरियर एंगल्स यूज कर सकते हैं, एंड इंटीरियर एंगल टू मेक 180. मोहम्मद कलीम रजा बेटे, आपका जी. इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. 76 is being added on left side of equation, so on the right side it will be subtracted. -76, 2b is equal to 10 - 6 is 4, 7 - 7 is 0, 104. There is no mathematical equation between b. So 104 divided by 2, so the value of b is 5. 2 5s are 10 and 2 2s are 4. तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, 52. यूजिंग द सेम प्रोसीजर ऑन द एजेस सी एंड डी. देखिए 118 सी और सी, ये भी तो पैरेलल है, तो ये भी आपके पास इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. तो 118 प्लस सी और सी, टोटल एंगल आपके पास हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 180. रीजन आपको वही दोनों लिखने पड़ेंगे कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ए बी पैरेलल था सी डी के, एंड इंटीरियर एंगल्स एड अप टू मेक 180 डिग्री. 2c इज इक्वल टू 180 माइनस 180, ये आपके पास आ जाता है 68. So 68 divided by 2 is 34. तो C की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 34. हमने B और C की वैल्यू निकाली. स्टिल वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D, और ये पॉइंट आपके पास E है. नाउ आई विल मूव टू द ट्राइंगल ABE. ट्राइंगल ABE में चले जाएं. ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE में है जी B, C और D. Sum of angle in a triangle is 180. The value of B is 52 and 34. 52 plus 34
plus D is equal to 180. 86 plus D is equal to 180. D is equal to 180 minus 86. D is equal to 4, 94. So the value of D is 94. यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है. वी हैव फाइंड आउट ऑल थ्री अननोन बी सी एंड डी, तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है. जरा रिपीट कर लें क्वेश्चन को. 76 और 2 भी आपके पास इंटीरियर एंगल हो जाते हैं, वहां से बी की वैल्यू निकाली. इस तरह 118 और 2C आपके पास इंटीरियर एंगल हो जाते हैं, वहां से सी की वैल्यू निकाली. B, D, C are lying on the edges of the triangle. So sum of angle in a triangle is 180. से आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है? D की. तो यहाँ से आपके पास B, C और D की वैल्यू आ जाती है आपके पास. If you want to take the screenshot, this is your review exercise 11 on page number 292, question number 3B part. The rest part of this question is on my next page over here. Now I'm going to start your question number 3C part. ये C part आपके पास लिखा हुआ है जी, ये C part है. I'm going to draw the C part over here. You are having G, F and E. These two sides are equal. AB is parallel to DC. ये दोनों आपके पास क्या है? Parallel है. These two lines are also equal and this point is E. Okay. दोबारा से आपके पास तीन अननोन है. सवाल काफी आसान है, जरा गौर से सुने, जरा गौर करने की बात है. अगर आप DEC CDE ट्राइंगल को देखें, CDE ट्राइंगल को अगर आप देखें, there is another angle given to this is 58. ये काम हमारा और भी आसान कर देता है, क्योंकि AB और CD पैरेलल हैं, तो F और 58 इक्वल हो जाएंगे. F इज इक्वल टू 58 क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, दोनों पैरेलल हैं. रीजन क्या है जी? AB इज पैरेलल टू CD. F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 58. F की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाती है? 58. अब आप DCDE ट्राइंगल के ऊपर जाए, CDE ट्राइंगल के ऊपर जाए. ये ऐसी ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं. दो साइड्स इक्वल हो तो आप उसको ट्राइंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. दो साइड इक्वल हो जाने के बाद थर्ड साइड पर बनने वाले दोनों एंगल्स आपके पास क्या होते हैं? सेम. F और F इक्वल हो जाएंगे. तो GFF ट्राइंगल कौन सी आ गई है? CDE एंगल है जी F plus G. सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180. 58 plus 58 plus G is equal to 180. 10 116.
जी हमने f की वैल्यू निकाल ली है 58 और g की वैल्यू आ गई आपके पास 64। हमारे पास सिर्फ वैल्यू रह गई e की आने वाली। तो पॉइंट डी के अगर आप अगर देखें तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। f और e दे आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए 180 बिकॉज ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। और f की वैल्यू हमारे पास आई है 58 इज इक्वल टू 180। e इज इक्वल टू 180 माइनस 58। e की वैल्यू आपके पास आ जाती है 122। तो आपके तीनों अननोन की वैल्यू आ गई है f g और e। f की वैल्यू हमने निकाली है क्योंकि a b और c d पैरेलल हैं तो f और 58 इक्वल हो जाएंगे ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सी डी ई ट्राइंगल है जिस आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बेस एंगल्स आपके पास इक्वल हो जाएंगे। एफ एफ और जी सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल 180 वहां से आपने जी की वैल्यू निकाली है। E and F they both are lying on a straight line so they will add up to make 180 डिग्री। वहां से आपने E की वैल्यू निकाल ली। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा मुश्किल है लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी पॉलीगोन के इंटीरियर एंगल्स का सम हमने निकालना हो तो हम फॉर्मूला लगाते थे n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n क्या होती थी उसकी नंबर ऑफ साइड्स। पेंटागोन होती था 5-2 मल्टीप्लाई बाय 180 3 मल्टीप्लाई 180 540 आ रहा था। तो हम पता लगा सकते थे कि पेंटागोन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। इस तरह हेक्सागोन हेप्टागोन ऑक्टागोन सबके इंटीरियर एंगल्स का सम हम इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं। सिर्फ आपने नंबर ऑफ साइड्स पुट करनी होती है। और किसी भी पॉलीगोन के एक्सटीरियर एंगल्स को अगर आप ऐड करें तो आपके पास आंसर आना ही 360 है चाहे वो जो मर्जी है। अगर वो पॉलीगोन है तो उसके बाहर वाले सारे एंगल्स को ऐड करें तो आंसर कितना आएगा 360। लेकिन इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। वी विल यूज दीस टू थिंग्स इन क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखें आपके पास ये बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके पास है जी 1 2 3 4 5 5 साइड्स हैं। पेंटागोन आपके पास गिवन है तो हम जी पेंटागोन ये ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास है जी ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये एंगल है 62 ए 95 114 और ये कौन सा जी 112। मैं कोशिश करके सारे इंटीरियर एंगल निकालना चाह रही हूँ। मेरे पास 2 इंटीरियर हैं। मैंने 1 2 और 3 इंटीरियर एंगल निकाले। सबसे पहले एट पॉइंट एच से स्टार्ट कर लेते हैं। चले बी से स्टार्ट कर लें जिससे मर्जी स्टार्ट कर लें। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं एट पॉइंट एच। इस एंगल को नाम दे दें एक्स का, इसको दे दें वाई का और इसको दे दें जी का। सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहती हूँ। एक्स और 62 दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ गए तो x प्लस 62 आपके पास हो जाएगा 180। एंगल लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एड अप टू मेक 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 62। 8 7 माइनस 6 इज 1 तो x की वैल्यू आ गई 118। अब आप वैल्यू निकालना चाहते हैं y की तो y और 112 एट पॉइंट B। y and 112 they both are again lying on a straight line so they will add up to make 180 degree। रीजन लिख दें स्ट्रेट लाइन और दूसरी बार भी हमने रीजन स्ट्रेट लाइन का ही यूज किया है। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 112। y की वैल्यू मेरे ख्याल से आ जाती है 68। अब अपने किसकी वैल्यू निकालनी है z की। ये सारे इंटीरियर एंगल आ गए सिर्फ z रह गए। तो आपको पता है कि जी एट पॉइंट हमारे पास कौन सा है c। तो z और a दोनों लाई कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे तो आपके पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस a। पेंटागोन है। पेंटागोन के मैंने x y और z तीनों की वैल्यू निकाल लिया। अब मेरे पास सारे इंटीरियर एंगल्स हैं
अब मुझे ये पता लगाना है कि असल में अगर मैं पेंटागोन के सारे एंगल्स को ऐड करूं, पांचों एंगल्स को ऐड करूं, तो आंसर आता कितना है। तो वो मैं देखने लगी हूं जी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागोन। उनके पेंटागोन है, 5 साइड्स हैं, तो फॉर्मूला जी n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। पेंटागोन की 5 साइड्स हैं, 5-2 मल्टीप्लाई 180। 5-2 होता है 3 मल्टीप्लाई 180, 3 और 2 लेंगे 5। तो आपके पास इसका मतलब है कि अगर आप पेंटागोन के इंटीरियर एंगल्स को ऐड करें तो आंसर कितना आना चाहिए, 540। इसका मतलब है कि अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो आंसर आना चाहिए 540। 114 एक्स से स्टार्ट कर लें, x 95 z y, x प्लस 95 प्लस z प्लस y प्लस 114, 1 2 3 4 5, इन पांचों को ऐड करें तो आंसर कितना चाहिए 540। x की वैल्यू आपने निकाली है 118, y की 68, 118 प्लस 95, z की वैल्यू आपके पास है जी 180 माइनस a, और y की वैल्यू आपने क्या निकाली है 68, और ये 114 विल रिमेन एज इज इक्वल टू 540। 118, 95, 180, 68 और 114, आपने इन सबको क्या करना है ऐड। 118, 95, 180, 68 और 114, इन सबको आपने क्या करना है ऐड। 8 और 8 16 और 4 20 और 5 25, 3 और 9 हो गए 12, 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27, 3 4 5, आ गया जी 575। तो आ गया जी 575 माइनस a इज इक्वल टू 540। 575 is equal to 540 plus a. 575 minus 540 is equal to a. 5 आ जाएगा, 7 में से 4 गए 3, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाती है 35। ये आपके पास था रिव्यू एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 4 का a पार्ट। तो ये आपके पास आ गई है रिव्यू एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 4 का a पार्ट। a की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 35, मेरे पास भी a की वैल्यू कितनी आ रही है 35। दोबारा से देख लें, सवाल थोड़ा लेंथी था, हमने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले तो हमने सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स पूरे किए, एक्स वाई और जी। एक्स 62 और एक्स देवर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो हमने वहां से एक्स की वैल्यू निकाली। वाई और 120 112 दे बोथ वर अगेन लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वहां से हमने वाई की वैल्यू फाइंड की। जी की वैल्यू आई 180 माइनस ए, क्योंकि ए की वैल्यू नहीं थी हमारे पास। फिर हमने सारे इंटीरियर एंगल्स को ऐड करके 540 के इक्वल रखा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ एनी पेंटागन इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज 540। सारे एंगल्स को यूज करने के बाद हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 35। यहाँ से आपका सवाल खत्म हो। आई गिव यू द टाइम टू टेक द स्क्रीनशॉट। हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी सी और क्वेश्चन नंबर 4 का ए। टाइम थोड़ा शॉर्ट है, वरना मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट भी करवा देती। नाउ आई विल रिक्वेस्ट योर होस्ट to unmute the student so that we can start our question answer session.